Corporate social responsibility. The most talked about compliance today is about the corporate social responsibility. Let's see the major and in-depth compliances of CSR under Companies Act 2013. Mandatory CSR committee constitution for every company. Now, every company is required to constitute a corporate social responsibility committee. But there are few categorizations. ऐसी कौन कौन सी कंपनीज हैं जिनको CSR कमेटी का कॉन्स्टिट्यूशन करना ही करना है. सो मैंडेटरी CSR कमेटी कॉन्स्टिट्यूशन फॉर एवरी कंपनी हैविंग number 1, net worth of 500 crores or more. So a company having net worth of 500 crores or more should constitute a CSR committee. Number 2, a company having turnover of 1000 crore or more should constitute a CSR committee. Number 3, a company having net profits of 5 crores or more should constitute a CSR committee. But नेट वर्थ टर्नओवर और नेट प्रॉफिट कौन से ईयर का देखना है, दैट इज ड्यूरिंग immediately preceding financial year. So if a company is having net worth of 500 crores in the previous financial year, then in this financial year the company is required to constitute CSR committee. या फिर अगर किसी कंपनी का टर्नओवर 1000 करोड़ या उससे ज्यादा हो गया है इन दी प्रिसीडिंग फाइनेंशियल ईयर, तो इस फाइनेंशियल ईयर में उसको CSR कमेटी कॉन्स्टिट्यूट करनी पड़ेगी. तीनों में से अगर कोई भी क्राइटेरिया फुलफिल होता है, आइदर नेटवर्थ, turnover or net profit during immediately preceding financial year, then the company is required to constitute corporate social responsibility committee. Now, for example, if you are checking the applicability of CSR committee for financial year 21-22, so during immediately preceding financial year क्या होगा, 20-21. ठीक है, अगर आपको देखना है कि 21-22 में हो रहा है या CSR कमेटी का कॉन्स्टिट्यूशन मुझे करने की जरूरत है या नहीं, सो यू विल चेक कि कंपनी की नेटवर्थ 500 करोड़ और मोर हो रही है, टर्नओवर 1000 करोड़ और मोर हो रहा है, नेट प्रॉफिट 5 करोड़ और मोर हो रहा है फॉर फाइनेंशियल ईयर 20-21. So this is the concept of during immediately preceding financial year. If you are checking the applicability of CSR committee for financial year 21-22, then you need to check the net worth of 500 crores or more is touched for financial year 20-21, या turnover of 1000 crores or more is touched for financial year 20-21, और net profit is 5 crores और more for financial year 20-21. अगर financial year 20-21 में नेटवर्थ, टर्नओवर और नेट प्रॉफिट इन 500, 1000 और 5 करोड़ रिस्पेक्टिवली से इतना या इससे ज्यादा हुआ है, तो फाइनेंशियल ईयर 21-22 में यू नीड टू फॉर्म अ CSR कमिटी ऑफ द कंपनी. नाउ लेट्स टॉक अबाउट द कमिटी कॉन्स्टिट्यूशन, कि कमिटी में कौन कौन मेंबर्स होगा. सो एक्ट कहता है कि द कमिटी शैल बी कॉन्स्टिट्यूटेड विथ एटलीस्ट 3 directors with at least 1 independent director. एक्ट क्या बोल रहा है कि जिस कंपनी को CSR कमिटी कॉन्स्टिट्यूट करनी है उसको कम से कम 3 डायरेक्टर्स के साथ कॉन्स्टिट्यूट करनी चाहिए विथ हैविंग एटलीस्ट 1 इंडिपेंडेंट डायरेक्टर. लेकिन इसके कुछ एग्जेम्पशंस हैं. फॉर एग्जाम्पल, प्राइवेट कंपनी में हैव 2 कमिटी मेंबर्स इफ इट्स बोर्ड नंबर इज सच. We all know that कि प्राइवेट कंपनी में कम से कम मिनिमम 2 डायरेक्टर से प्राइवेट कंपनी कैन बी फॉर्म्ड. सो इफ अ प्राइवेट कंपनी हैव ओनली 2 डायरेक्टर्स, then such private company can have only 2 committee members in the CSR committee constitution, right? Foreign company may have 2 committee members, one being person resident in India authorized to accept on behalf of company service of process.
Another, as nominated by a company. So if it is a private company, then CSR committee can have 2 committee members. If it is a foreign company, then CSR committee can have 2 committee members, provided one is being resident in India, matlab one is living in India, and so that he could receive any such notices, any such compliances, that is process of service of process हो सके. Another is as nominated by the company. So foreign company के case में it is not necessary that director of the foreign company should be the CSR committee member. Another thing is where the company is not required to appoint an independent director under section 149 of the Companies Act 2013, it can have minimum 2 directors in its CSR committee. अगर कोई ऐसी कंपनी है जिसको इंडिपेंडेंट डायरेक्टर रखने की रिक्वायरमेंट नहीं है, तो फिर वो भी मिनिमम 2 डायरेक्टर से अपनी CSR कमिटी को कॉन्स्टिट्यूट कर सकती है. So generally the CSR committee should be formed with at least 3 directors. Out of 1 shall be independent director. लेकिन in case of private company, foreign company and a company which is not required to appoint an independent director, a company may have 2 members in its CSR committee. Mandatory CSR expenditure. Now कंपनी ने क्या किया, CSR की प्रोविजन आइडेंटिफाई करे, क्या CSR एप्लीकेबल हो रहा है या नहीं हो रहा. नेटवर्थ, टर्नओवर और नेट प्रॉफिट के बेसिस पे हो रहा था, तो CSR कमिटी कॉन्स्टिट्यूट कर दी विद मिनिमम 3 डायरेक्टर्स बीइंग एटलीस्ट 1 इंडिपेंडेंट डायरेक्टर. कमिटी कॉन्स्टिट्यूट हो गई. अब कमिटी क्या करेगी, इंश्योर करेगी दैट कंपनी डज मैंडेटरी कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी एक्सपेंडिचर. Now, what is this mandatory CSR expenditure is a very important and base concept of the entire corporate social responsibility provision. Every company constituting CSR committee shall ensure that in every financial year it spends 2% of the average net profits of the company made during the 3 immediately preceding financial years. हर कंपनी जिसके ऊपर CSR एप्लीकेबल हो रही है, जिसने CSR कमिटी कॉन्स्टिट्यूट करी है और जिसके पास प्रॉफिट्स हैं, उसको ये इंश्योर करना है कि हर फाइनेंशियल ईयर में उसको कुछ ना कुछ CSR एक्सपेंडिचर करना है. कितना करना है, 2% ऑफ द एवरेज नेट प्रॉफिट्स ड्यूरिंग 3 इमीडिएटली प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर. इस फाइनेंशियल ईयर में अगर हम बात कर रहे हैं, तो इस फाइनेंशियल ईयर से पिछले 3 इमीडिएटली प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर्स का नेट प्रॉफिट्स का एवरेज लेंगे, उसका 2% लेंगे और उतना अमाउंट मैंडेटरी खर्च करना ही करना है कंपनी को टुवर्ड्स CSR एक्सपेंडिचर. फॉर एग्जांपल, if you're checking the CSR expenditure to be done in financial year 21-22, अगर हमें इस साल का 21-22 का देखना है कि हमें कितना CSR एक्सपेंडिचर करना है, so we'll consider net profits of immediately 3 preceding financial year, that is 20-21, 19-20 और 18-19 का net profits लेंगे. and ये net profits should be calculated in terms of section 198 of the Companies Act 2013. Suppose net profit for financial year 20-21 2 करोड़ हुआ, net profit 19-20 का 3 करोड़ हुआ, net profit 18-19 का 4 करोड़ हुआ. टोटल net profit कितना हो गया, 9 करोड़ का. एवरेज कितना हो गया, इमीडिएटली 3 प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर का 9 करोड़ बाय 3, सो 3 करोड़ का एवरेज आ गया हमारे पास. सो अब इस एवरेज का 2% कितना हुआ, 6 लाख. सो मिनिमम 6 lakhs इज द मैंडेटरी CSR एक्सपेंडिचर टू बी डन फॉर द फाइनेंशियल ईयर 21-22. सो 21-22 में कितना CSR एक्सपेंडिचर करना है कंपनी को, इमीडिएटली 3 प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर का जो भी नेट प्रॉफिट हुआ उसके एवरेज का 2% आपको CSR एक्सपेंडिचर करना ही करना है, राइट. Also, where the company has not completed the period of 3 financial years since its incorporation, कंपनी इनकॉर्पोरेट हुए 2 साल हुए हैं या 1 साल हुए हैं, लेकिन इतना अच्छा किया कंपनी ने कि उसकी नेट प्रॉफिट 5 करोड़ से ज्यादा हो गया, टर्नओवर 1000 करोड़ से ज्यादा हो गया, या नेटवर्थ 500 करोड़ से ज्यादा हो गई और उसके ऊपर CSR के प्रोविजन एप्लीकेबल हो गए, तो 3 फाइनेंशियल ईयर तो हुए नहीं है. तो जितने फाइनेंशियल ईयर हुए हैं, 1 हुआ है, 2 हुआ है,
उस फाइनेंशियल ईयर का उतने का उस नेट प्रॉफिट के एवरेज का 2% लेके उतना मैंडेटरी सीएसआर एक्सपेंडिचर करना है. Also, if the amount to be spent by the company does not exceed 50 lakh, the requirement of constitution of CSR committee is not applicable and CSR functions shall be discharged by the board. Very important thing to ensure that अगर CSR expenditure किसी भी कंपनी का 50 लाख से कम हो रहा है या 50 लाख से ज़्यादा नहीं हो रहा, 50 लाख या 50 लाख से कम हो रहा है, तो जो भी रिक्वायरमेंट है CSR एक्सपेंडिचर की या CSR की जो भी प्रोविजंस कंप्लाई करने की, CSR पॉलिसी, एनुअल एक्शन प्लान, कुछ भी रिक्वायरमेंट है तो वो बोर्ड कर सकता है. उसके लिए स्पेसिफिकली बोर्ड को एक कमिटी, CSR कमिटी कॉन्स्टिट्यूट करने की रिक्वायरमेंट नहीं है. Simple yet important. Also, there are few other requirements of CSR expenditure, that is, the administrative overheads shall not be more than 5% of the total CSR expenditure of the company for the financial year. कंपनी का जो भी एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड्स है, जो भी एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस हैं, that should not be more than 5% of the total CSR expenditure. जितना भी आपने CSR में खर्च किया है उसके 5% से ज्यादा आपका एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस नहीं होने चाहिए. नंबर 2, any surplus arising out of CSR activities shall not form part of the business profits of the company. Suppose कोई ऐसा CSR एक्टिविटी हुई जिससे कंपनी को प्रॉफिट्स हुए या कुछ सरप्लस जनरेट हुआ, तो वो भी आप उसको बिजनेस प्रॉफिट नहीं कंसिडर करोगे. यू विल again use that amount in the CSR activities only. You will not consider it or not form it part of the business profits of the company. Number 3, any surplus arising out of CSR activities shall be spent back into the same project or shall be transferred to unspent CSR account or shall be transferred to funds specified in Schedule 7 within a period of 6 months from the expiry of financial year. So अगर कोई सरप्लस है तो उसको प्रॉफिट्स नहीं मानना है, या तो उसको सेम प्रोजेक्ट में इंडल्ज कर दो, नहीं तो यू नीड टू ट्रांसफर इट टू अनस्पेंट CSR अकाउंट या Schedule 7 के फंड में within a period of 6 months from the expiry of that financial year जिसमें सरप्लस जनरेट हुआ है from the CSR activities. Okay. Now, how will the CSR be implemented? CSR का implementation कैसे होगा? मतलब whatever amount जो खर्च करना है उसको implement कैसे करेंगे, किसके थ्रू करेंगे? So CSR implementation can be either done by the company itself, company खुद projects identify करे, खुद उनमें invest करे, so that could be done, or through कंपनी चाहे तो जो भी CSR अमाउंट उसे स्पेंड करना है वो थ्रू कंपनीज विद चैरिटेबल ऑब्जेक्ट्स, रजिस्टर्ड पब्लिक ट्रस्ट या रजिस्टर्ड सोसाइटी को दे दे. जो भी अमाउंट उसे स्पेंड करना है वो ऐसी चैरिटेबल ऑब्जेक्ट्स वाली कंपनी को दे दे. बट companies with charitable objects or registered public trust or registered society should be established by the company jointly or by any other company. The charitable objects company should be established by central government or state government, having an established track record of at least 3 years in undertaking similar activities. कंपनी ऐसे चैरिटेबल कंपनीज को CSR अमाउंट दे सकती है खर्च करने के लिए जो या तो कंपनी ने खुद स्टैब्लिश करी हो या किसी और कंपनी ने स्टैब्लिश करी हो, लेकिन उसके पास कम से कम 3 साल का ट्रैक रिकॉर्ड हो ऑफ डूइंग सिमिलर CSR एक्टिविटीज, या ऐसी चैरिटेबल ट्रस्ट या ऐसी पब्लिक ट्रस्ट या रजिस्टर्ड सोसाइटी को दे सकती है जो सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट ने स्टैब्लिश करी हो, having an established track record of at least 3 years in undertaking similar activities. Also किसके थ्रू कर सकती है? Any entity established under an act of parliament or state legislation. किसी भी ऐसी एंटिटी जो पार्लियामेंट ने स्टैब्लिश करी हो या स्टेट लेजिस्लेचर ने स्टैब्लिश करी हो, उस एंटिटी को भी पैसा देके उसके थ्रू CSR इम्प्लीमेंटेशन कर सकते हो. Now, what if the company fails to do required CSR expenditure? कंपनी को करना था बट नहीं कर पाया, तो क्या करना है? स्पेसिफाई द रीजन फॉर नॉट स्पेंडिंग द अमाउंट इन बोथ रिपोर्ट. कोई भी रीजन दे सकते हो, इस फाइनेंशियल ईयर में लॉसेस थे सो नहीं किया,
कोई प्रोजेक्ट नहीं मिला अच्छा, the implementation practically impossible हुआ, so any reason, but the reason should be specified in both report. Also, another important concept came, which is treatment of unspent amount. इतना amount spend करना था किसी financial year में, but वो नहीं हुआ. अब उस amount का करना क्या है? Number one, इफ कोई ऑनगोइंग प्रोजेक्ट था, ऑलरेडी कोई सीएसआर का प्रोजेक्ट चल रहा था कंपनी का, लेकिन उस पर खर्चा नहीं हुआ, प्रोजेक्ट चल रहा है, या कोई ऑनगोइंग प्रोजेक्ट नहीं था. अगर ऑनगोइंग प्रोजेक्ट था तो जो अनस्पेंड अमाउंट था उसका ट्रीटमेंट क्या होगा? ट्रांसफर द अमाउंट टू अ स्पेशल अकाउंट टू बी ओपन्ड बाय द कंपनी इन एनी शेड्यूल बैंक टू बी कॉल्ड अनस्पेंट कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंट within a period of 30 days from the end of financial year. अगर कोई ongoing project था और उस पर उतना खर्चा नहीं हुआ, उतना CSR एक्सपेंडिचर नहीं हुआ जितना होना चाहिए था, जितना रिक्वायर्ड था उस फाइनेंशियल ईयर में, then you need to transfer the unspent amount to another, एक नया अकाउंट खोल के उस अकाउंट में वो अनस्पेंड अमाउंट डालना है within 30 days from the end of the financial year. अगर ऑनगोइंग प्रोजेक्ट नहीं है कोई और आपने खर्चा नहीं किया सीएसआर एक्सपेंडिचर में, करना था, तो क्या करोगे आप? ट्रांसफर द अमाउंट, द अनस्पेंड अमाउंट टू एनी फंड स्पेसिफाइड इन शेड्यूल 7. शेड्यूल 7 में बहुत सारे फंड स्पेसिफाई करे हुए हैं गवर्नमेंट ने, उसमें से किसी भी एक फंड में ट्रांसफर करना है. कितने टाइम पीरियड में? विद इन अ पीरियड ऑफ 6 months ऑफ द एक्सपायरी ऑफ द फाइनेंशियल ईयर. जिस फाइनेंशियल ईयर में खर्चा करना था वो उसके खत्म होने के विद इन 6 months आपको वो फंड ट्रांसफर करने हैं. सपोज 21-22 में खर्चा करना था बट खर्चा नहीं हुआ, देन विद इन 6 months फ्रॉम द एक्सपायरी ऑफ 21-22 you have to transfer the fund to any fund specified in schedule 7 अगर you don't have any ongoing CSR project. Also, अगर कोई ongoing project चल रहा है और आपने उस ongoing project में unspent amount डाल दिया, suppose within 30 days from the end of the financial year, you have to ensure that such amount should be spent by the company towards its CSR obligation within 3 financial year from the date of transfer. जिस दिन आपने unspent corporate social responsibility account में जिस दिन आपने पैसे डाले कि this is the unspent amount, उस दिन से 3 फाइनेंशियल ईयर तक यू नीड टू एंश्योर कि वो पैसे उस अकाउंट में नहीं पड़े रहे एंड इट इज स्पेंड टुवर्ड्स इट्स सीएसआर ऑब्लिगेशन, टुवर्ड्स द कंपनी सीएसआर ऑब्लिगेशन. अगर ऐसा नहीं होता है, इफ नॉट स्पेंड, अगर 3 फाइनेंशियल ईयर में भी अनस्पेंड कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंट में से पैसे नहीं खर्च होते हैं टुवर्ड्स सीएसआर एक्सपेंडिचर, देन you need to transfer the amount to specified fund specified in schedule 7. अगर 3 साल में भी आप नहीं खर्च कर पाते हो तो आपको schedule 7 के फंड में पैसे डालने पड़ेंगे. कितने टाइम पीरियड में? विद इन अ पीरियड ऑफ 30 days फ्रॉम द डेट ऑफ कंप्लीशन ऑफ 3rd फाइनेंशियल ईयर. So treatment of unspent amount is very easy. अगर कोई ongoing project चल रहा है तो उस ongoing project में उतना amount spend नहीं हो पाया तो एक special account में एक schedule bank में एक special account खोलना है by the name of unspent corporate social responsibility account within a period of 30 days from the end of financial year और उसमें वो पैसे transfer कर देने हैं. अगर वो पैसे transfer हो गए, so you need to ensure that from the date of transfer till 3 financial years that amount should be spent towards the company's CSR obligation. और अगर नहीं होता है 3 फाइनेंशियल ईयर में, अगर वो पैसे भी खर्च नहीं होते हैं तो उसको schedule 7 में डालना है within a period of 30 days from the date of completion of that 3rd financial year. और अगर कोई ongoing project नहीं है तो ट्रांसफर कर देना है डायरेक्ट अनस्पेंड अमाउंट टू एनी फंड स्पेसिफाइड इन schedule 7 of the act. Now what if a company spends in excess of CSR requirement? मतलब जितना स्पेंड करना था कंपनीज एक्ट के हिसाब से उतना तो स्पेंड किया ही किया, लेकिन उससे ज्यादा स्पेंड कर दिया. अगर फाइनेंशियल ईयर 2021 की रिक्वायरमेंट 2 करोड़ थी तो 3 करोड़ स्पेंड कर दिया, तो क्या होगा? लेट्स चेक दैट आउट. It can be set off against the CSR expenditure requirement up to immediate succeeding 3 financial years
subject to the conditions that the board of the company shall pass a resolution to that effect, that is board resolution pass hona chahiye. Second, such excess amount shall not include the surplus arising out of CSR activities. That is to say, अगर किसी कंपनी ने कोई एक्सेस अमाउंट इस फाइनेंशियल ईयर में स्पेंड कर दिया है तो वो उसको सेट ऑफ कर सकती है नेक्स्ट 3 फाइनेंशियल ईयर्स तक, बट हर फाइनेंशियल ईयर में जिसमें भी वो सेट ऑफ करेगी पिछले फाइनेंशियल ईयर का, उसके लिए नंबर 1 बोर्ड रेजोल्यूशन पास हो, और जो एक्सेस अमाउंट है, जो एक्सेस स्पेंड हो गया है, उसको सीएसआर एक्टिविटीज का प्रॉफिट्स और सरप्लस नहीं कंसिडर करेंगे. ओके, लेट्स अंडरस्टैंड दिस विद एन एग्जांपल. If company was required to spend 2 crore in financial year 2021 in terms of its CSR requirement, but actually spends 3 crore in that financial year. So the company was required to spend 2 crore in this financial year, but क्योंकि बहुत अच्छा प्रोजेक्ट मिला, कुछ अच्छी अपॉर्चुनिटीज मिली, तो कंपनी से 3 करोड़ खर्च हो गया. करना 2 करोड़ था, 3 करोड़ हो गया. So the excess amount is 1 crore which is spent in the financial year 2021. Now if financial year जो next succeeding financial year है, for example 21-22, CSR की requirement was 3 crore, तो 1 crore is already in excess which was spent in previous year. तो क्या होगा कि 21-22 में कंपनी सिर्फ 2 करोड़ खर्च कर सकती है, क्योंकि 1 करोड़ तो पिछले साल का एक्सेस अमाउंट है ही. So this is the concept. If a company spends in excess of CSR requirement, so the company can set off the excess amount to the immediate 3 financial years. अगर बहुत ज़्यादा खर्च कर दिया और 3 financial year succeeding 3 financial years से ज़्यादा 4th financial year में वो उसको set off नहीं कर पाएगी, 3 financial year तक it can set off. That is the major thing to remember. And also board resolution is required, and second condition is that excess amount shall not be considered as surplus CSR activity. Another important concept, which is also a recent concept, जो January 22, 2021 के notification से आया है, which is acquisition of a capital asset. CSR amount जो कंपनी को स्पेंड करना था, क्या कंपनी उससे कोई कैपिटल एसेट खरीद सकती है? The CSR amount may be spent by a company for creation or acquisition of capital asset, which shall be held by number 1, companies with charitable objects, registered public trust, registered society, and having CSR registration number. तो CSR अमाउंट से आप कैपिटल एसेट खरीद सकते हो, बट वो कैपिटल एसेट किसके नाम पर होना चाहिए? एक एनजीओ के नाम पर, चैरिटेबल ऑब्जेक्ट की कोई कंपनी हो उसके नाम पर, और उस कंपनी का CSR रजिस्ट्रेशन नंबर हो. नंबर 1 उनके नाम पर हो सकती है. नंबर 2, और बेनिफिशियरीज ऑफ द सेट CSR प्रोजेक्ट. अगर कोई CSR प्रोजेक्ट चल रहा है जिसके अंडर यू हैव टू एक्वायर अ कैपिटल एसेट, सो उस CSR प्रोजेक्ट की जो बेनिफिशियरीज हैं, जिनको उन CSR प्रोजेक्ट से बेनिफिट होने वाला है, उनके नाम पर आप कैपिटल एसेट खरीद सकते हो. लाइक सो आप किसी भी CSR प्रोजेक्ट से किसको हेल्प कर रहे हो? किसी एंटिटी को, किसी छोटे ग्रुप को, तो वो ग्रुप बेनिफिशियरी हो गया उस CSR प्रोजेक्ट का, तो उनके नाम पर होनी चाहिए वो कैपिटल एसेट. या फिर किसी पब्लिक अथॉरिटी के नाम पे भी आप वो कैपिटल एसेट खरीद सकते हो विद योर CSR अमाउंट. So this concept came from January 22, 2021, a recent amendment. What does it say is that a company may spend, अगर चाहे तो, जो अपना CSR अमाउंट है जो उसको स्पेंड करना है, उससे वो कोई कैपिटल एसेट खरीद सकती है या क्रिएट कर सकती है, बट वो कैपिटल एसेट या वो कैपिटल एसेट जो क्रिएट होगी या एक्वायर होगी, दैट शुड बी हेल्ड बाय a charitable object company having CSR registration number, या under the name of beneficiaries of CSR project, or should be held by a public authority. कंपनी के नाम पे वो कैपिटल एसेट रजिस्टर्ड नहीं होनी चाहिए. Also another important thing is capital asset created prior to January 22, 2021 shall within a period of 180 days from January 22, 2021, that is 20 July 2021, shall comply with this
or within a period of 270 days from January 22, 2021, that is 18 October 2021, with board's approval based on reasonable justification. That is to say, दिस नोटिफिकेशन केम ऑन जनवरी 22, 2021. सो अगर उससे पहले किसी कंपनी ने सीएसआर अमाउंट से कोई कैपिटल एसेट क्रिएट करी थी, एक्वायर करी थी, तो उससे विद इन 180 डेज फ्रॉम जनवरी 22, 2021, दैट इज 20 जुलाई 2021 तक उसे इस प्रोविजन से कंप्लाई करना पड़ेगा. कंप्लाई करना पड़ेगा मतलब ये देखना पड़ेगा कि वो कैपिटल एसेट किसके नाम पे हो, कंपनीज विच इज रजिस्टर्ड विद चैरिटेबल ट्रस्ट हैविंग सीएसआर रजिस्ट्रेशन नंबर, या बेनिफिशियरी ऑफ सीएसआर प्रोजेक्ट, या अंडर द नेम ऑफ एनी पब्लिक अथॉरिटी. इससे कंप्लाई करना पड़ेगा कि उस कैपिटल एसेट को इन 3 कैटेगरीज को ओनर बना दो उस कैपिटल एसेट का. कंपनी के नाम पे वो कैपिटल एसेट नहीं होनी चाहिए. तो या तो आप इसको 180 डेज में कंप्लाई करो, 22 जनवरी से 180 डेज में इस चीज को कंप्लाई करो. तो 22 जनवरी से 180 डेज मतलब 20 जुलाई 2021 तक इसको कंप्लाई करो. और अगर आप 20 जुलाई 2021 तक कंप्लाई नहीं कर पा रहे हो तो आप बोर्ड की अप्रूवल लो रीजनेबल जस्टिफिकेशन के साथ कि आप क्यों अप्लाई नहीं किया, आप क्यों कंप्लाई नहीं कर पा रहे हो इसको 20 जुलाई तक इस नोटिफिकेशन को. और मैक्सिमम 270 डेज फ्रॉम जनवरी 22, 2021, दैट इज 18 अक्टूबर 2021 तक इस प्रोविजन से कंप्लाई करो ही करो. या तो 180 डेज फ्रॉम जनवरी 22 तक कंप्लाई कर लो, और अगर 180 डेज फ्रॉम जनवरी 22 तक कंप्लाई नहीं कर पा रहे हो तो 270 डेज फ्रॉम 22 जनवरी तक कंप्लाई करो, बट टेक board of directors approval based on reasonable justification that why you cannot comply within 180 days from Jan 22, 2021. Okay. Now also talking about very important concept which most of us forgets. हमने सब कुछ कर लिया, CSR comply कर लिया, लेकिन what if subsequently any company gets uncovered for mandatory CSR expenditure? बहुत सालों तक कंपनी ने बहुत अच्छा किया, नेटवर्थ अच्छी थी, टर्नओवर 1000 करोड़ से ज्यादा था, नेट प्रॉफिट 5 करोड़ से ज्यादा था, सो CSR एप्लीकेबल हो रहा था, बट कंपनी की कंडीशंस वर नॉट गुड, तो इतना टर्नओवर या नेट प्रॉफिट्स नहीं हुए. सो द कंपनी गेट्स अनकवर्ड फॉर मैंडेटरी CSR एक्सपेंडिचर. कंपनी को रिक्वायर्ड ही नहीं था, तो क्या करेंगे हम? क्या तब भी हमें CSR एक्सपेंडिचर करना पड़ेगा? अगर मेरा इमीडिएटली प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर पुराना तो चल रहा था, बट अगर मैंने देखा कि इस फाइनेंशियल ईयर में, प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर में तुमसे अगर मैंने देखा कि मेरे नेट प्रॉफिट्स क्या 5 करोड़ से ज्यादा आ रहे हैं, तो नहीं आ रहे थे, पुराना चल रहा था CSR एप्लीकेबिलिटी, लेकिन सडनली किसी फाइनेंशियल ईयर में नहीं हुई एप्लीकेबिलिटी, तो क्या होगा? व्हाट इफ अ कंपनी subsequently gets uncovered for mandatory CSR expenditure? This is mentioned in the rules which most of us ignore, but this is very important. Only if any company ceases to be covered under the mandatory criteria of net worth, turnover or net profit under section 135(1) of the Companies Act 2013 for 3 consecutive financial years, it shall not be required to constitute CSR committee, comply with CSR provisions till such time it again meets the criteria. Very, very important to know, not only from exam point of view, but also for the people or the professionals who are into CSR, that अगर किसी एक साल आपके ऊपर CSR एक्सपेंडिचर हट गया, बिकॉज आपकी नेटवर्थ, टर्नओवर और नेट प्रॉफिट का जो क्राइटेरिया है इन सेक्शन 135, नेटवर्थ ऑफ 500 करोड़ और मोर नहीं हुई, या टर्नओवर 1000 करोड़ से ज्यादा नहीं हुआ, या नेट प्रॉफिट 5 करोड़ से ज्यादा नहीं हुआ, अगर ऐसा 3 कॉन्जिक्यूटिव फाइनेंशियल ईयर्स तक, द वर्ड इज कॉन्जिक्यूटिव, दैट इज रेगुलरली, अगर 3 कॉन्जिक्यूटिव फाइनेंशियल ईयर तक ऐसा नहीं होता, तब CSR कॉन्स्टिट्यूट नहीं करनी है या CSR के प्रोविजन से कंप्लाई नहीं करना है. अगर किसी एक फाइनेंशियल ईयर में ऐसा हुआ तो आपकी CSR कमेटी इंटैक्ट रहेगी, अगर दूसरे फाइनेंशियल ईयर में नहीं हुआ तो भी इंटैक्ट रहेगी, लेकिन अगर तीसरे कॉन्जिक्यूटिव फाइनेंशियल ईयर में भी आप उस क्राइटेरिया में नहीं आ रहे हो, नेटवर्थ, टर्नओवर और नेट प्रॉफिट, तो आप CSR का कॉन्स्टिट्यूशन से, CSR कमेटी के कॉन्स्टिट्यूशन से और CSR के प्रोविजन के प्रोविजंस को कंप्लाई करने छोड़ सकते हो टिल इट मीट्स द क्राइटेरिया अगेन.
राइट. सो द इम्पोर्टेंट थिंग इज दैट ऑलवेज रिमेंबर, कब कवर नहीं हो गया, अगर 3 कॉन्जिक्यूटिव फाइनेंशियल ईयर्स तक क्राइटेरिया में फॉल नहीं हो रहे हो तो द कंपनी इज नॉट रिक्वायर्ड टू कॉन्स्टिट्यूट CSR कमिटी till the time it again meets the criteria. Okay. An annual action plan, very simple thing of CSR. Annual action plan क्या कहता है? Recommendation of an annual action plan to the board of directors according to the CSR policy of the company. CSR कमेटी को, बोर्ड को एक एनुअल एक्शन प्लान देना होगा अकॉर्डिंग टू द CSR पॉलिसी ऑफ द कंपनी. और प्लान में क्या होना चाहिए? नंबर 1, the list of CSR projects or programs that are approved to be undertaken, the modalities of utilization of funds and implementation schedules for the projects or programs, details of need and impact assessment, if any, for the project undertaken by the company, monitoring and reporting mechanism for projects or programs. So basically CSR कमेटी एक एनुअल एक्शन प्लान देती है बोर्ड को, जिसमें वो सारा लिस्ट करती है कि कौन कौन से प्रोग्राम्स हमने अप्रूव करे हैं इस साल CSR में करने के लिए, कितना फंड लगेगा उन प्रोग्राम्स और शेड्यूल्स में, और कैसे कैसे वो फंड हम यूटिलाइज करेंगे, और कहाँ कहाँ पे उस प्रोजेक्ट के इम्प्लीमेंटेशन के लिए हमें असेसमेंट करना पड़ेगा, और अगर कोई इम्पैक्ट असेसमेंट करने की ज़रूरत है तो किससे कराना है, कैसा इम्पैक्ट असेसमेंट की ज़रूरत है, एंड टाइम टू टाइम हम कब मॉनिटर और रिपोर्टिंग करेंगे ऑफ द CSR प्रोजेक्ट्स. सो एक ऐसा एक एनुअल एक्शन प्लान साल में एक बार CSR कमेटी बोर्ड को रिकमेंड करेगी. दिस इज ऑल्सो न्यू कॉन्सेप्ट विच केम अप. CSR 1 is an important e-form which says that every entity, that is companies with charitable objects, registered public trust, registered society, who intends to undertake any CSR activity shall register itself with the central government by filing the form CSR 1. कोई भी एंटिटी जो किसी कंपनी से पैसे ले रही है कि हम एक चैरिटेबल ऑब्जेक्ट ट्रस्ट है या हम रजिस्टर्ड सोसाइटी हैं जो CSR एक्टिविटीज करते हैं, सो ऐसी कंपनी को एक फॉर्म फाइल करना पड़ेगा CSR 1, जिससे वो सेंट्रल गवर्नमेंट के रिकॉर्ड्स में रजिस्टर्ड हो जाएंगी दैट वी आर द कंपनीज विच आर डूइंग CSR एक्टिविटीज और विच आर अंडरटेकिंग CSR एक्टिविटीज, जो कॉर्पोरेट से पैसे लेते हैं और हम CSR एक्टिविटीज करते हैं, राइट. सो एक ऐसा रजिस्ट्रेशन इन NGOs को लेना पड़ेगा. A unique CSR registration number shall be generated by the system automatically, और ऐसी कंपनीज को एक यूनिक CSR रजिस्ट्रेशन नंबर मिल जाएगा. The board of any company shall satisfy itself that the funds so dispersed have been utilized for the purpose and in the manner as approved by it. कोई भी कंपनी जो अपना CSR एक्सपेंडिचर किसी NGO, किसी चैरिटेबल ट्रस्ट कंपनी को या किसी रजिस्टर्ड पब्लिक ट्रस्ट या किसी रजिस्टर्ड सोसाइटी के थ्रू करा रही है, उसके बोर्ड को ये इंश्योर करना पड़ेगा कि जो भी फंड्स उसने डिस्पर्स करे हैं, दिए हैं उस चैरिटेबल एंटिटी को, वो उसी पर्पस के लिए यूज हो और उसी मैनर में यूज हो जिस मैनर ने बोर्ड ने अप्रूव किया है, मतलब CSR एक्टिविटीज में ही यूज्ड हो. And the chief financial officer or person responsible for the financial management shall certify to that effect. और this is the new thing which came up recently कि CFO को कंपनी के या जो भी CFO नहीं है तो any person जो भी financial management के responsible है, वो एक सर्टिफिकेट देगा बोर्ड को कि हमने जहां पर भी CSR के लिए पैसा दिया है जिस भी NGO को, वो NGO उस ही पर्पस के लिए CSR एक्टिविटीज के लिए ही वो फंड यूटिलाइज करेगी. ओके. CSR reporting. CSR reporting is also one of the major concept of CSR and it is very necessary. CSR reporting, number 1, annual report on CSR. This is the older concept. Impact assessment reports came recently and very important. So annual report on CSR says board report should include an annual report on CSR in the prescribed formats. Every company giving in board reports, such board report should include annual report on CSR. हर साल एक annual report बनेगी CSR की, उसके लिए prescribed formats हैं और उस report को पार्ट बनना है board report का. So
CSR report is part of board's report of the company. Now, impact assessment report. This is very important and also recently introduced concept. Company having average CSR obligation of 10 crore or more in the 3 immediately preceding financial year should include impact assessment report in the board report in addition to CSR annual report. मतलब CSR annual report तो देनी है, लेकिन अगर कोई कंपनी जिसकी CSR obligation पिछले 3 preceding financial years में 10 करोड़ या उससे ज्यादा थी, मतलब CSR ऑब्लिगेशन 3 प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर का अगर हम एवरेज निकाले तो वो 10 करोड़ या उससे ज्यादा था, तो उस कंपनी को इम्पैक्ट असेसमेंट रिपोर्ट भी देनी पड़ेगी इन एडिशन टू एनुअल रिपोर्ट ऑन CSR. अब इम्पैक्ट असेसमेंट रिपोर्ट किसकी होगी? इम्पैक्ट असेसमेंट शुड बी डन थ्रू एन इंडिपेंडेंट एजेंसी of such CSR projects having outlay of 1 crore or more and have completed at least 1 year. So impact assessment किसका होगा? ऐसे CSR projects का होगा जिनका बजट 1 करोड़ या उससे ज्यादा है और उस प्रोजेक्ट को कम से कम 1 साल हो चुका है, और उस इम्पैक्ट असेसमेंट और उस CSR प्रोजेक्ट का इम्पैक्ट असेसमेंट करेगा कौन? कोई भी इंडिपेंडेंट एजेंसी करेगी. A company undertaking impact assessment may book the expenditure towards corporate social responsibility for that financial year, which shall not exceed 5% of the total CSR expenditure for that financial year or 50 lakh rupees, whichever is less. अगर किसी कंपनी ने किसी इंडिपेंडेंट एजेंसी के थ्रू इम्पैक्ट असेसमेंट करवाया तो वो इम्पैक्ट असेसमेंट के लिए उस इंडिपेंडेंट एजेंसी को भी पैसे देने पड़ेंगे. सो इम्पैक्ट असेसमेंट कराने के लिए जो भी खर्चा होगा, कंपनी कैन बुक इट टुवर्ड्स द एक्सपेंडिचर ऑफ CSR, कैन बुक इट एज CSR एक्सपेंडिचर, लेकिन वो एक्सपेंडिचर 5% से ज्यादा नहीं होना चाहिए टोटल CSR एक्सपेंडिचर के, और 50 लाख whichever amount comes to the less, उससे ज्यादा एक्सपेंडिचर नहीं होना चाहिए, राइट? So this is about impact assessment reports. ब्रीफ करने के लिए इम्पैक्ट असेसमेंट रिपोर्ट्स क्या होंगी? ऐसी कंपनी जिनका प्रीवियस इमीडिएटली 3 फाइनेंशियल ईयर्स में एवरेज CSR ऑब्लिगेशन 10 करोड़ या उससे ज्यादा थी, उनको इम्पैक्ट असेसमेंट रिपोर्ट करनी है. किसकी करनी है? ऐसे CSR प्रोजेक्ट्स की करनी है जिनका बजट 1 करोड़ या उससे ज्यादा था और उनको 1 साल हो चुका है. ऐसे CSR प्रोजेक्ट्स का इम्पैक्ट असेसमेंट होगा. कौन करेगा? एक इंडिपेंडेंट एजेंसी करेगी, और जो खर्चा होगा इम्पैक्ट असेसमेंट करवाने के लिए उसको आप CSR एक्सपेंडिचर मान सकते हो, लेकिन वो CSR एक्सपेंडिचर 5% ऑफ टोटल CSR एक्सपेंडिचर और 50 लाख रुपीज whichever is less, इससे ज्यादा नहीं होना चाहिए. So this is about CSR reporting. Also website disclosures. वेबसाइट पे क्या क्या डिस्क्लोज होगा? इफ अ कंपनी हैव अ वेबसाइट देन इट शुड डिस्क्लोज CSR कमिटी, उसका कॉन्स्टिट्यूशन कौन कौन है, CSR पॉलिसी, एंड ऑल्सो प्रोजेक्ट्स दैट आर अप्रूव्ड बाय द बोर्ड फॉर डूइंग CSR प्रोजेक्ट्स और प्रोग्राम्स आपके क्या क्या है, कौन कौन से प्रोजेक्ट्स हैं CSR के, वो सब भी वेबसाइट पे डिस्क्लोज होने चाहिए. Now various things came up in these COVID eras. Spending of CSR funds for COVID-19 is eligible CSR activity. बहुत सारी notifications आई जिसमें CSR funds जो है वो COVID-19 के लिए, अगर आपने कुछ फंड कंपनी ने अगर कुछ फंड दिए हैं फॉर ब्रिंगिंग रिलीफ ड्यूरिंग द पेंडेमिक, सो वो एलिजिबल हो जाता है CSR फंड्स के लिए. ऐसे कौन कौन सी स्पेंडिंग थी? स्पेंडिंग ऑफ CSR फंड्स, अगर आप अपने CSR फंड्स फॉर COVID-19 के रिकवरिंग के लिए लगा रहे हो तो दैट वुड बी कवर्ड अंडर शेड्यूल 7. कंट्रीब्यूशन मेड टू PM केयर्स फंड शैल क्वालिफाई एज CSR एक्सपेंडिचर. अगर आपने कोई PM केयर फंड में पैसे दिए हैं तो वो CSR एक्सपेंडिचर कंसिडर हो जाएगा. कंट्रीब्यूशन टुवर्ड्स स्टेट डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी टू कम्बैट COVID-19 शैल क्वालिफाई एज CSR एक्सपेंडिचर. Chief Minister's Relief Fund or State Relief Fund for COVID-19
is not included in Schedule 7 of Companies Act. Hence, contribution to these funds will not be admissible as CSR expenditure. अगर आपने चीफ मिनिस्टर रिलीफ फंड और स्टेट रिलीफ फंड फॉर कोविड-19 में कुछ भी कंट्रीब्यूशन दिया है, so that will not be considered as CSR expenditure. Payment of salary, wages to employees or workers during the lockdown period shall not be admissible as CSR expenditure, because वो तो कंपनी की moral responsibility है, उसको CSR नहीं बोलेंगे. अगर आप अपने employees को normal lockdown में company is not working, तब salary या wages दे रहे हो, तो that is not CSR. However, any payment made to temporary casual workers या daily wage workers specifically for the purpose of fighting COVID-19, the same shall be admissible towards CSR expenditure as a one-time exception, provided there is an explicit declaration to that effect by the board of the company, which is duly certified by the auditor. लेकिन अगर आप कोई ऐसा पेमेंट कर रहे हो अपने किसी डेली वेज वर्कर को या टेम्परेरी एम्प्लॉय को जिसको कोविड से फाइट करने के लिए या कोविड का ट्रीटमेंट लेने के लिए चाहिए था, तो आप उसको CSR बोल सकते हो, बट उसके लिए एक डिक्लेरेशन लेनी पड़ेगी आपको बोर्ड से, एंड वो डिक्लेरेशन शुड बी सर्टिफाइड बाय द स्टैट्यूटरी ऑडिटर ऑफ द कंपनी. Spending of CSR funds for COVID-19 is eligible CSR activity. Carrying out awareness campaigns, programs, public outreach campaigns on COVID-19, vaccination program is an eligible CSR activity. बहुत सारी कंपनीज ने वैक्सीनेशन प्रोग्राम किया है एंड वो वैक्सीनेशन प्रोग्राम इज कवर्ड अंडर CSR एक्टिविटी एंड दे कैन क्लेम इट एज CSR एक्सपेंडिचर ऑल्सो. ठीक है. Spending of CSR funds for setting up makeshift hospitals and temporary COVID care facilities is an eligible CSR activities. Many companies are setting, temporary COVID relief care center fund care facilities. वो भी CSR activity में consider हो सकता है.